Hi, good morning everyone, and my dear students. Meet myself Ubaid Alam, and I am the part of New Horizon Public School Amroha. As you all know that I am your SST teacher. At this time, we are going through a terrible problem in which we need to be cautious. Keeping this vigilance in mind, our honorable manager and principal sir decided to run an online class. And while doing this work, I considered myself lucky. So we start our class today. And today's class is for 6 in geography, and the name of the first chapter of geography is the earth and the solar system. Today I will explain you about the chapter, and you are seeing on your mobile screen there are 6 important points of this chapter. First point is introduction. Introduction of this chapter, okay? And you are seeing on your mobile screen. First point is the people in ancient times have studied the sky and the heavenly bodies. The sun, the moon, and all shining objects which we see in the sky are called heavenly or celestial bodies. The celestial bodies are found in groups or clusters. Some of them are very hot and big. They are made up of gases. They have their own heat and light. These celestial bodies are called stars. मीन्स प्राचीन काल में लोगों ने आकाश और स्वर्गीय पिंडों का अध्ययन किया है. सूर्य, चंद्रमा और सभी चमकने वाली वस्तुएं जिन्हें हम आकाश में देखते हैं उन्हें स्वर्गीय या कैलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, जिनमें से कुछ बहुत गर्म और बड़े होते हैं और ये गैसों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें अपनी गर्मी और रोशनी होती है. और ये क्या कहलाते हैं? सितारे, क्योंकि स्टार्स में अपनी गर्मी और रोशनी होती है. वेरी गुड. Now we will discuss about the second point of this chapter. Second point is solar system. Second point क्या है? Solar system. Solar system consists of the sun, the 8 planets and their satellites and thousands of other smaller bodies. In order from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets. Mercury is closest to the sun and has almost no atmosphere because it has been burned off by the sun. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Okay? Means सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह हैं. कितने? सूर्यमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं और उपग्रह भी हैं. और हजारों अन्य छोटे पिंड सूर्य के क्रम में हैं. हजारों. और अन्य बाहरी ग्रह हैं. बुध सूर्य के सबसे करीब है और लगभग कोई वातावरण नहीं है. क्यों नहीं है भाई वातावरण? वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि यह सूर्य द्वारा जला दिया गया है, क्योंकि सूर्य के पास है और सूर्य के अंदर क्या है? बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज प्रकाश और बहुत तेज हीट है, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्लैनेट है ये जल चुका है. दूसरा इसमें शुक्र को, यानी शुक्र इसमें लिखा हुआ है ना कि वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है, क्योंकि ये दिखने में और आकार में किसकी तरह है? बिल्कुल पृथ्वी की तरह. वेरी गुड. एंड योर थर्ड पॉइंट इज द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. इसका मतलब है कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अनोखा प्लैनेट क्यों कहा जाता है? देयर आर सम फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ ऑन इट. नंबर 1 पॉइंट है इसका, द अर्थ हैज एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. Number 2, it is composed of land and water, so it has right kind of temperature. Number 3 point है इसका, the earth has a protective blanket of ozone around it. Number 4, the earth has favorable environmental conditions for the origin and survival of various forms of life. Number 5, the rotation of the earth on its own axis keeps the extremes of temperature between day and night within tolerable limits. Okay? That means इस पर जीवन का समर्थन करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं. एंड ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ हैज एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे आवश्यक तत्व हैं. नंबर 2 पॉइंट का मीनिंग क्या है? यह भूमि और पानी से बना है, इसलिए इसमें सही प्रकार का तापमान है. नंबर 3 है, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की एक सुरक्षात्मक चादर है. ओजोन एक, यानी पृथ्वी के चारों तरफ एक चादर है ओजोन की, जो हमारी धरती को, पृथ्वी को, अर्थ को क्या करता है और हमें
अलग अलग तरह की बीमारियों की जो हमारे अंतरिक्ष से आ रही हैं उससे हमारी सुरक्षा करता है। नंबर फोर्थ पॉइंट है, पृथ्वी में जीवन के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति और अस्तित्व के लिए अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियां हैं। यानी जो हमारा प्लानिट है उसके अंदर क्या है, जीवन के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति, यानी जिससे हमारा जीवन हम जी सकते हैं, जैसे पानी, हवा और जमीन। ये सिर्फ हमारे ही प्लानिट पे तीनों चीजें पाई जाती हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट का मीनिंग है इसका, अपनी ही धुरी पर पृथ्वी का घूमना सहनीय सीमाओं के भीतर दिन और रात के बीच तापमान के चरम को बनाए रखता है। यानी जो हमारी पृथ्वी घूमती है तो उससे हमारे दिन और रात बनते हैं, जिससे हमारा तापमान बना रहता है और जीने में आसानी होती है। नंबर इसका फोर्थ पॉइंट है फुल मून। कौन सा है? फुल मून, यस। Gradually from a slim crescent, the shape grows to full moon night or Purnima in 15 days. Okay? It means जो चंद्रमा है वो अपनी स्टार्टिंग जो करता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का दिखता है, फिर जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते हैं 15 दिन में वो पूरे शेप में आ जाता है। उसे कहते हैं फुल मून नाइट। जब उस रात में चंद्रमा फुल मून नाइट में आ जाता है तो उसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन 15 दिन के बाद चंद्रमा जो है अपनी फुल आकृति में आ जाता है। इट मीन्स फुल मून। एंड योर फिफ्थ पॉइंट इज न्यू मून। व्हाट इज न्यू मून? नाइट ऑफ अमावस्या इज सिचुएशन व्हेन वी कैन नॉट सी द मून फ्रॉम द अर्थ। ऑन दिस वी कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इट मीन्स अमावस्या की रात में एक स्थिति धरती से नहीं देख सकते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जब हम चंद्रमा को धरती से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस रात में आकाश यानी आसमान को सबसे अच्छा देखते हैं। यानी फुल मून नाइट जो होती है उसमें आसमान जो है हमारा बहुत आकर्षक दिखता है। एंड योर सिक्स पॉइंट इज कमेट्स। कमेट्स मीन्स धूमकेतु। कमेट्स आर ऑफन डिस्क्राइब एज डर्टी स्नोबॉल्स। द सॉलिड सेंटर ऑफ अ कमेट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आइस मिक्सड विद सूटी मटेरियल. The center is quite small and is usually only a few kilometers across. They revolve around the sun and have a very long period of revolution. When a comet approaches the sun, the vapors are forced away from the sun. Due to the light that falls on these vapors, it appears to have an illuminated a long tail of gas and dust. It always points away from the sun. Halley's comets return to the earth every 76 years. If I will translate in Hindi, धूमकेतु को अक्सर गंदे बर्फ की बॉल यानी गेंद के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें एक प्रतिबद्ध का ठोस केंद्र होता है जिसमें ज्यादातर बर्फ उपयुक्त सामग्री के साथ मिश्रित होती है। इसका केंद्र काफी छोटा होता है और आमतौर पर कुछ किलोमीटर भर तक होता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके आने का एक लंबे समय होता है। हैली का धूमकेतु मीन्स कमेट्स हर 76 साल के बाद पृथ्वी पर लौटता है। ओके, यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स? यू कैन सर्च द हार्ड वर्ड फ्रॉम द चैप्टर्स एंड लर्न इट. इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर. ओके, थैंक्स.